To find the amount of capital that needs to be maintained. To find the amount of capital that needs to be maintained at the closing. That needs to be maintained at the closing in order to ensure that the entity can still have adequate capital bracket after drawings bracket closed, whereby it can continue to purchase the same quantity of units as at the start of the year comma. This concept is used. Full stop. Next line. The three bases used are the point A, financial capital at historical cost. Subpoint A, financial capital at historical cost. Right on. Underline next line. In this case, the opening and closing capitals slash assets are stated at the respective time period at the historical cost. Underline the word historical cost. Full stop. Next line. It is based on the assumption that the cost of the stock is the same at the closing as it was at the opening. Full stop. Next line.
Write down. If the net balance, if the net balance bracket surplus bracket closed is greater or equal to 0 or equal to 0, then the required capital is maintained. Then the required capital is maintained. That is, the entity has, enough funds to replace its assets, at historical cost. Next, B part heading. Financial capital maintenance at current purchasing price, at current purchasing power. Financial capital maintenance at current purchasing power. Underline next line. In this case, the opening and closing capitals, slash equity are restated at the closing price. Underline the word closing price. Using average price indices. Using average price indices. Full stop. Next line, same point, next line. This method considers the changes in price. This method considers the changes in price of the stock. Considers the changes in price of the stock, but it may not be accurate. To predict the capital required. Using this method. Since every product might have a different inflation rate. Every product might have a different inflation rate. Next, subpoint C. Heading physical capital maintenance at current cost. At current cost.
Underline next line. In this method, the opening and closing capitals, are restated at the closing prices using the specific price of each product slash asset. Full stop. Next line. This method gives an accurate measure of capital to be maintained. Underline the word accurate measure. Next line. But if an entity has multiple products with multiple inflation rates, then the calculations can become complex. Clear है चलिए? Done? Proper? चलो. I'm giving you 3 minutes time. So that ends the writing part. कुछ डाउट है आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारा जो पेंडिंग प्रॉब्लम्स है हम पूरा कर देंगे. ठीक है? चलो 3 minutes time starts now. ग्लांस कर लीजिए, जो भी डाउट रहेगा यू कैन आस्क. Any doubt, difficulty you have, you can ask. 3 मिनट के बाद, हाँ, so that everybody can ask. मार्क करते जाइए, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे.
रीडिंग की बाकी? बोलिए, एनी डाउट? ऑल डन? हो गया क्वेश्चंस? हाँ बोलो। हाँ, जरूरी नहीं है, रिलायबल हो सकता है बट रिलेवेंट नहीं होगा। लाइक अगर हम बातचीत कर रहे हैं अभी, हम अभी बातचीत कर रहे हैं क्या बोलते हैं, एएस का, एएस सपोज आई एम टॉकिंग ऑफ एएस 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अब मैं उसमें इन एएस 19 का डिस्कशन करूंगा, एम्प्लॉय बेनिफिट्स का, वो आपके लिए रिलेवेंट है? आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। मैं बोला रिलायबल है तो मॉड्यूल देख ले, सब सेम ही चीज बोल रहा हूं मैं। The information is reliable but not relevant as far as the inter is concerned. So as far as the inter is concerned, it's not relevant. And when I am teaching CA final, उधर जाके मैं AS का बात करूंगा, करते हैं ऐसा कुछ लोग, तो AS का बात करूंगा तो वो उनके लिए रिलेवेंट ही नहीं है, बिकॉज उनके लिए AS एप्लीकेबल ही नहीं है। दे हैव ओनली IFRS इन डेज इन देयर सिलेबस। प्रैक्टिकल वो लोग आर्टिकलशिप में यूज करेंगे बट FR का पेपर के टाइम थोड़ी यूज होने वाला है। तो रिलायबल है बट रिलेवेंट नहीं है। कंपनी, कंपनी का एग्जांपल बात करेंगे हम, तो like TCS talks about TCS gives financial data for 23-24. It's a reliable information. They are known for their क्या बोले, reliability of information, authenticity of information. बराबर? अभी उसमें सडनली वो लोग बोले चंद्रशेखरन साहब जो है वो मैराथन भी भागते हैं, बहुत फिट है, एकदम ऐसा एजाइल है बहुत। वो शेयर होल्डर बोले हमको उसे क्या लेने देना है? बोले अरे तुम्हारा चेयरमैन है वो इतना तंदुरुस्त है, फिट है वो, इसकी वजह से इतना कमाता है। तो ठीक है, हमको उसे कोई लेने देना नहीं। दैट इज द मीनिंग। बराबर? और दे टॉक ऑफ सम प्रोजेक्ट्स व्हिच इज नॉट रिलेवेंट एट ऑल। चलो डन हो गया? और कुछ आपका डाउट था कुछ?
हाँ, मैंने बोला ना, एवरी कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर वुड लाइक टू दे हैव सफिशिएंट कैपिटल इफ दे वांट टू रिप्लेस ऑल द एसेट्स. उनका बैलेंस शीट में जितना भी एसेट्स है, दे वांट टू नो कि कैन आई रिप्लेस ऑल दिस एसेट्स इफ आई वांट, एम आई कैपेबल ऑफ रिप्लेसिंग माय एसेट्स. इसमें मैंने एक आध जगह में वर्ड एसेट भी डाला है, एक आध जगह मैंने वर्ड इक्विटी भी डाला है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया है मैंने. बट आपका बेस लेवल में उतना ही है, इसलिए मैंने स्टॉक रिलेटेड बात ही किया है. एब्सोल्युटली चेक करते हैं कि मेरे पास सफिशिएंट फंड्स है क्या, कि अगर मुझे मेरा एसेट रिप्लेस करना पड़ा तो मेरे पास सफिशिएंट फंड्स है कि नहीं है, उतना मैंने प्रोविजन किया है कि नहीं है. जैसे आप जो बिल्डिंग में रहते हैं, आप सोसाइटी में रहते हो, तो एवरी बिल्डिंग एंड सोसाइटी हैज समथिंग कॉल्ड एज अ सिंकिंग फंड, एज अ रिपेयर फंड. तो एनी सोसाइटी विच इज डूइंग इज थिंग्स डिलीजेंटली, तो उनका बैलेंस शीट में आपको सिंकिंग फंड भी दिखेगा, रिपेयर फंड भी दिखेगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिंकिंग फंड एंड रिपेयर फंड? द सोसाइटी सेज वी हैव सफिशिएंट फंड्स कि अगर रिपेयर करना पड़ा तो हम रिपेयर करेंगे, अगर पूरा डिमोलिश करके वापस बनाना पड़ा तो उतना सिंकिंग फंड हमारे पास है. अगर जो सोसाइटी नहीं करती है, मतलब ऐसा रहेगा, कुछ कुछ सोसाइटी घपला करती रहेगी, नहीं करती रहेगी, मीन दे डोंट हैव सफिशिएंट कैपिटल मेंटेनेंस, दैट्स द मीनिंग ऑफ इट. हाँ बोलिए. अरे है कि नहीं, ताकत है कि नहीं, हम चेक कर रहे, थोड़ी बेच के रिप्लेस करेगा रोज. अब तुम्हारे घर में टीवी अच्छा खासा चल रहा है लास्ट ईयर, थोड़ी बोला चलो बेच के देखते हैं, नया लेते हैं. बट मेरे पास कैपेसिटी है क्या नहीं, वो तो चेक करेगा ना. मैं डन हो गया. एनी क्वेश्चंस? दैट्स ऑल. प्रॉब्लम्स कर दे. चलो प्रॉब्लम सेक्शन में आ जाइए, विल फिनिश ऑफ दिस. जो जो पेंडिंग है अपना क्वेश्चंस. रेडी? देख लो क्या बोला है. मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस on 1st April 11 with rupees 12 lakhs represented by 60,000 units of rupees 20 each. तो स्टार्टिंग में कितना स्टॉक था उनके पास? 60,000. और क्या प्राइस में खरीदा था? 20 रुपया. करना क्या है, लास्ट टाइम में, लास्ट लाइन में देखते हैं. कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट which can be withdrawn by Mohan in 2011-12 if the financial capital is maintained at historical cost. तो बोले मेरे को पैसा निकालना है बिजनेस में से, तो कितना मैक्सिमम निकाल सकता है? दैट इज अ क्वेश्चन आस्क्ड. अब क्या बोला है सेकेंड लाइन में? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st March 2012 he sold the entire stock for 30 rupees. In order to maintain the capital intact, calculate the maximum amount he can withdraw in the year 11-12. तो बोले 30 रुपए में मैंने माल बेच दिया है, तो how much is the closing capital he has? 18 lakhs. The closing capital he has is 60,000 into 30 rupees. 18 lakhs he has closing capital. And how much is the capital required to be maintained? That is 60,000 into 20 रुपया, 12 lakhs चाहिए. तो how much surplus he has? तो 6 लाख सरप्लस है जो विड्रॉ कर सकता है. क्या हो गया, समझ में आ रहा है क्या? तो दैट इज द मीनिंग. कैसा लिखा है देखो, क्लोजिंग कैपिटल या इक्विटी 18 लाख रुपया कैश पड़ा है मेरे पास, और मेरे को कितना चाहिए? 12 लाख चाहिए. तो परमिसेबल विड्रॉवल 6 lakhs. तो दिस इज व्हाट? कैपिटल रिक्वायर्ड. This is the capital required. This is the capital you have at 31,312. इतना है, इतना आपको चाहिए, सरप्लस 6 लाख रुपए. समझ में आ रहा है क्या आपको? क्लैरिटी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्या बोला है देखो,
A Limited has entered into a binding agreement with Gamma to buy a custom made machine worth rupees 1 lakh. Binding agreement. What is the meaning of binding agreement? नॉन कैंसिलेबल. बाइंडिंग एग्रीमेंट मतलब नॉन कैंसिलेबल, बोलता कैंसिल नहीं कर सकते हैं. बोलता बाइंडिंग एग्रीमेंट किया है, कैंसिल नहीं कर सकते. किस चीज के लिए किया आपने? कस्टमाइज मशीन. मतलब आपको जैसा चाहिए वैसा मशीन बना के देगा. कितने रुपए में? 1 लाख. अभी ऑब्वियसली आपको जैसा मशीन चाहिए वैसा बना के देगा तो नॉन कैंसिलेबल ही होगा ना. क्यों नॉन कैंसिलेबल ही होगा? और कोई तो बनाए लेगा नहीं. नहीं समझ में आ रहा है? आपका घर का मेजरमेंट के हिसाब से उसने टेबल बनाया है, चेयर बनाया है, वार्डरोब बनाया है, आप ना बोल देगा दूसरा कोई थोड़ी लेगा. इसे नॉन कैंसिलेबल है. क्या बोला है देखो, एट द एंड ऑफ द ईयर 11-12 बिफोर डिलीवरी ऑफ द मशीन A Limited had changed its method of production. The new method will not require machine ordered, it will be scrapped after delivery. Expected scrap value is nil. You are required to advise the accounting treatment and give journal entry in the year 11-12. क्या गड़बड़ हो गया है? वो 11-12 में आपका प्रोडक्शन का तरीका ही बदल गया. प्रोडक्शन का तरीका ही बदल गया. बोलता जब भी वो मशीन आएगा तब तक वो यूजलेस हो जाएगा. तो क्या करना पड़ेगा उसको? स्क्रैप, सीधा बंगार. एंड बंगार का वैल्यू भी क्या है? 0. नहीं समझ में आ रहा है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, शुगर केन वाला है, हो शुगर केन जूस लेता बनाता है हो, तो अभी समझो ना उसका कस्टमरी मशीन है, वो 2 रोलर के बीच में आप शुगर केन डालो तो जूस आ जाएगा. सुन रहे? लाइक मालूम पड़ा गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं नहीं भाई ऐसा ओपन में शुगर केन जूस एक्सट्रैक्शन अलाउड नहीं, इट इज हेल्थ प्रॉब्लम्स इशू हो रहा है. सुन रहे क्या? तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया और आपने वैसा मशीन ऑर्डर कर दिया, तो आपके लिए खास आपका दुकान के हिसाब से मेजरमेंट लेके वैसा मशीन बना रहा है, और गवर्नमेंट ने बोला ऐसा ओपन मशीन बैंड है. मालूम पड़ा इफ यू आर ब्रिंगिंग इट इज एन ऑटोमेटिक मशीन विच इज एनक्लोज्ड. तो बट मशीन आ गया तो आपको स्क्रैप करना पड़ा, बिकॉज आप यूज तो नहीं कर सकते, और मशीन तो लेना पड़ेगा. क्यों लेना पड़ेगा? बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है. तो बोलते जर्नल एंट्री बोलो. हाँ 1 मिनट का टाइम है. क्या क्या जर्नल एंट्री होगा? रीजन के साथ चाहिए. 1 मिनट टाइम. टाइम स्टार्ट्स नाउ. रुका है, मैं जर्नल एंट्री चाहिए मेरे को. पेंसिल से स्क्रिबल कर लो जर्नल एंट्रीज.
चलो टाइम आउट. Who's answering? चलो he's saying I'll start. He's saying machinery account debit to gamma is the first entry I will pass. How many agree with him? And how many say is wrong? ऑब्जेक्शन है बोल रहे हैं. हाँ, ये लोग को ऑब्जेक्शन है. 1 2 3. क्यों ऑब्जेक्शन है भाई? क्या क्या ट्रीटमेंट है? 11 12 का ही पूछा है ना. वो बोलता एसेट यूज ही नहीं होने वाला है तो उसको रिकॉग्नाइज क्यों कर रहे हैं? वो बोलता है पहला मशीनरी. 1 मिनट उसको खत्म करने दो. वो बोलता है मशीनरी टू गामा करेगा फिर. हाँ, उसको खत्म करने दो बोल रहा है. He's saying P&L debit to loss on sale of machinery 1 lakh. और कुछ? He's saying first is machinery to gamma, then P&L to loss on sale of machinery. हाँ हाँ बोलो. जर्नल एंट्री बोलो. जर्नल एंट्री बोलो. हाँ जर्नल एंट्री. तुम जो चाहिए वो बोल दो ना. एक ही एंट्री करेंगे आप. वो बोला लॉस ऑन मशीनरी टू मशीनरी 1 लाख. ओके. और हाँ शी इज सेइंग सम आंसर. हाँ 1 मिनट. लेट अस कंक्लूड. ज्यादा टाइम यूज नहीं करेंगे. He is saying machinery to cash bank. फिर loss on sale of machinery. Where is the sale? There is no sale. There is no sale of machinery. Sale of machinery क्या? No, there is no sale of machinery. कहाँ बेच रहे हैं? मशीनरी बिक ही नहीं रहा है. Where is the sale? There is no sale at all. हाँ बेच रहे हैं क्या हम? It will be scrapped after the delivery. The expected scrap value is nil. तो सेल कहां कर रहे हैं हम? समझ में आ रहा है कि सेल कहां हो रहा है? बता दो. आप बोलेगा सेल ऑफ मशीनरी या सेल ऑफ मशीनरी टू मशीनरी. वेयर इज अ सेल? देयर इज नो सेल. बोलो. ही इज सेइंग आई विल टेल. लॉस ऑन स्क्रैप ऑफ मशीनरी टू मशीनरी. हाँ फाइन. Okay, fine, okay, fine. Let's conclude. सबसे पहला पर्सपेक्टिव, मशीनरी डेबिट टू गामा आएगा कि नहीं आएगा? सबसे पहला तो गामा को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ऑब्वियस, वी हैव टू मेक द पेमेंट टू गामा. व्हाई वी हैव टू मेक द पेमेंट टू गामा? रीजन बता दो. व्हाई वी हैव टू पे टू गामा? इट्स अ बाइंडिंग एग्रीमेंट. तो क्या क्रिएट हो गया? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. जैसे ही बाइंडिंग एग्रीमेंट है तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया है. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ मतलब लायबिलिटी क्रिएट हो गया है. इसलिए तो लायबिलिटी का डेफिनेशन कर रहे हैं ना वो लोग. लायबिलिटी इज व्हाट? अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट. ये अभी क्यों भरना पड़ता है? बिकॉज ऑर्डर दे के रखा है पहले. सेटलमेंट ऑफ विच विल लीड टू आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस. तो सबसे पहला तो आपको लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा. तो आप मशीनरी डेबिट टू गामा बोलो
or you can even say loss due to change in the method of production. आपका लॉस का रीजन देना पड़ता है. आप लॉस ऑन सेल ऑफ स्क्रैप बोलेंगे या लॉस ड्यू टू स्क्रैप. अरे स्क्रैप क्यों किया, तो कोई भी पढ़ेगा उधर लिखा है लॉस ऑन स्क्रैप. अरे क्या रीजन से स्क्रैप किया, खराब हुआ, डैमेज हुआ, जल गया, अर्थक्वेक आ गया. व्हाट इज द रीजन? एनीबॉडी रीडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज टू अंडरस्टैंड. दैट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी. बहुत जन ये चैप्टर क्यों नहीं करता है, उसको कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो. अरे मैं जब लिखूंगा तो मैं क्या सोच के लिखूंगा, जो रीड कर रहा है उसको समझ में आना चाहिए, डाउट नहीं आना चाहिए. जब मैं प्रोविजंस आपके लिए स्लाइड बना रहा हूं, तो जब मैं प्रोविजन बना रहा हूं तो मैं लिखते वक्त मेरा ध्यान रहना चाहिए, अरे यार मैं लिखूंगा और ये बुक में डिक्टेट करूंगा तो इसको समझ में आना चाहिए. मैं लिख रहा हूं, मुझे समझ में आ गया, वो पर्सपेक्टिव से करेगा तो कभी नहीं होएगा. मैं लिखते वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे समझ में आ रहा है, मुझे सोचना चाहिए जो भी इसको पढ़ेगा उसको समझ में आएगा क्या. तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा लॉस ड्यू टू चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन. लॉस ड्यू टू चेंज ऑफ मेथड ऑफ प्रोडक्शन 1 लाख टू गामा. अगर मशीनरी करके नहीं लिखना है, क्यों मशीनरी करके नहीं लिखना है, एसेट ही नहीं है. यू कैनॉट से मशीनरी डेबिट. व्हाई यू कैनॉट से मशीनरी डेबिट? मशीनरी कभी बोल सकते हैं व्हेन इट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी arising out of past event, capable of generating future economic benefits. अभी इसमें से ये मशीनरी कौन सा डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है? कंट्रोल्ड है, बट रिसोर्स है क्या? नहीं है. इकोनॉमिक फ्लो होएगा क्या? तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आप मशीनरी डेबिट कैसा बोल सकते हैं? इसलिए डेफिनेशन चाहिए. आप कनेक्ट करेंगे तो आपका मैच्योरिटी बढ़ेगा, तो आपको समझ में आएगा भाई आदमी ने 3 घंटा इसमें बिताया, कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ. अब नहीं तो आप डिस्कनेक्टेड रहोगे तो आपको सब ऐसा लगेगा बकवास है. चैप्टर 1 2 3 सब धर्म संकट में ना चैप्टर 1 2 3 काम आता है. जिसने बनाया वो अपने से बहुत बड़ा दिमाग वाला है, इसलिए वो सोच के बनाया ना, नहीं तो क्यों बनाएगा. गॉट माय पॉइंट? हाँ, तो एसेट क्यों नहीं? बिकॉज कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है. So I cannot say machinery debit. So I'll say loss due to change in method of production. Debit 1 लाख, गामा को तो देना ही है बिकॉज लाइबिलिटी क्रिएट हो गया. देन फिर लॉस ऑन चेंज ऑफ प्रोडक्शन कहां जाएगा? P&L. तो P&L डेबिट टू लॉस ड्यू टू चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन. गॉट माय पॉइंट? क्यों मशीनरी डेबिट नहीं होगा वो समझ में आ रहा है क्या? हाँ. एंड क्यों गामा आएगा? कहां बोला है पेमेंट किया है? सिर्फ बाइंडिंग एग्रीमेंट बना है, पेमेंट कहां दी है? Where it is said payment is made? Nowhere it is said payment is made. Nor any advance is given. Clear on it? समझ में आ रहा है क्या? तो देखो कैसा लिखा है. A liability is recognized when outflow of economic resources in settlement of a present obligation can be anticipated and value of outflow can be reliably measured. मतलब वही चीज लिखा है, घुमा के लिखा है. In the given case, A Limited should recognize liability of 1 lakh to Gamma. Second, when the flow of economic benefit to the enterprise beyond current period is considered improbable, मतलब मशीन से बेनिफिट आएगा ये कोई प्रोबेबल, तो उसको एसेट करके रिकॉग्नाइज. रीजन लिखा है देखो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस एंड नॉट एन एसेट. क्यों मशीन नहीं बोलना चाहिए, क्यों लॉस बोलना चाहिए? ये किसको समझ में आएगा? डेफिनेशन मालूम रहेगा तो कनेक्ट कर पाएगा. इन द प्रेजेंट केस फ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम मशीन टू एंटरप्राइज इज improbable. Therefore, the entire purchase price of machine should be recognized as an expense. So, journal entry, loss of change in method of production debit 1 lakh to Gamma and P&L account debit to production loss on change in method of production 1 lakh. Are we communicating? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट.
थर्ड तो हमने कर दिया है. क्वेश्चन नंबर 4. Fourth one. Let us check fourth one. Let's see how well you think. Carrying amount of machine is 40,000. Historical cost less depreciation. और क्या बोला है? The machine is expected to generate 10,000 net cash inflow. Net cash inflow. The net realizable value bracket net selling price of the machine on the current date is 35,000. The enterprise required earning is 10% per year. बराबर? तो लिख दो find present value of the machine. Present value of the machine. Present value of the machine when its remaining useful life is 5 years. When its remaining useful life is 5 years. बोलिए कैसे निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन? किस चीज का डिस्काउंटिंग करेंगे? द नेट कैश इनफ्लो का डिस्काउंटिंग फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू लेके आना है. तो कर दो. नोटबुक में करना है तो नोटबुक में कर लो. प्रेजेंट वैल्यू ईयर्स कैश इनफ्लो present value factor and present value of cash inflow. Year number 1, 2, 3, 4, 5. हर साल तो कितना रहने वाला है? हर साल में 10,000 ही है. सब साल 10,000 ही है. फैक्टर करना पड़ेगा आपको. डिस्काउंटिंग का फैक्टर ढूंढने आता है ना अपने को. 10% के हिसाब से करना है. तो ये कितना होएगा? पहला साल 0.9091. करते जाओ, रुको मत. जीरो 0.9091 आएगा तो क्या होएगा? 9091. और दूसरा साल हो जाएगा 0.8624 ना. 8264 है. 8264. इधर भी 8264 आएगा. ये कितना है? 0.7513. तो 7513 0 पॉइंट कितना होएगा? 6830. तो 6830 and 0.6209. 6209 कितना आ रहा है? देखो कितना आ रहा है? 37908. 37908 आया बराबर? 37908. That is the present value of the machinery. तो प्रेजेंट वैल्यू चाहिए. सो प्रेजेंट वैल्यू इज 37908. डन. Done all of you? The present value of the machinery is 37908. Okay? और ये जो रिकवरेबल वैल्यू है
वो हम इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स में करेंगे, तभी डिस्कस कर लेंगे। रिकवरेबल वैल्यू इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स में डिस्कस करेंगे। सुन रहे हैं आप? तो अभी के लिए उसमें डिस्टर्ब मत करो, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स में डिस्कस हो जाएगा रिकवरेबल वैल्यू का कॉन्सेप्ट। ये समझ में आया क्या? प्रेजेंट वैल्यू निकालने को आया आपको? बस उतना सफिशिएंट है। फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, बराबर ना? फिफ्थ नहीं हुआ है, चलो फिफ्थ वन। Compute the retained profit under the concept of physical capital maintenance at current cost. Also state whether the answer would be different if the trader has not withdrawn any amount. कौन सा मेथड से करना है? Physical capital maintenance at, come on, do it on your own. खुद से ही करो भाई, खुद से करो, बाद में लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। खुद से कैलकुलेट कर लो, देन वी विल डिस्कस एट द एंड। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं अभी आपको। हो गया कैलकुलेशन? यस और नो? देख लो, क्लोजिंग कैपिटल आपके पास कितना है देखो, 6,000 इंटू 6,000 इंटू 30 रुपीज माइनस कुछ विड्रॉल किया है, 60,000 आपने विड्रॉ कर दिया, तो कितना कैपिटल बाकी है? 1,20,000 लेस कैपिटल रिक्वायर्ड, दैट्स ओपनिंग कैपिटल। कितना चाहिए? 6,000 यूनिट। और क्या प्राइस में करने वाले हम? द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज 25, 25 रुपया है। तो 25 रुपए के हिसाब से हमको पैसा चाहिए 1,50,000 चाहिए। तो क्या है तुम्हारे पास? शॉर्टफॉल है ना? तो देयर इज अ लॉस शॉर्टफॉल 30,000, बराबर है? क्लियर और नो? So, and would your answer be different if the trader has not withdrawn any money? Yes. No withdrawal तो हमारे पास कितना पैसा रहता था? 1,80,000 रहता था। और हमको चाहिए कितना है? 1,50,000। चाहिए तो उतना ही रहता था, तो क्या हो जाता था? 30,000 surplus. Then you would have had a retained earning. Got the point? हाँ ना? So that finishes your question number 5. Clear on it? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक और एक अलग टाइप आया था एग्जाम में एक बार, वो भी देख लो। दैट इज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4, एक आध एग्जाम क्वेश्चन में आया था। इफ यू कैन मैनेज दिस ऑन योर ओन। क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सी इफ यू कैन थिंक। एग्जाम क्वेश्चन है, ऐसा डायरेक्टली आया हुआ एग्जाम में, December 21. Mrs. A is showing consolidated aggregate opening balance of equity, liability and assets
of 6 lakh, 4 lakh and 10 lakh respectively. सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए, they are talking of Mrs. A. तो क्या फर्क पड़ता है? ओके, और नहीं, कॉमेडी के अलावा और क्या मालूम पड़ता है? सोल ट्रेडर, सोल प्रोपराइटर। तो सोल प्रोपराइटर का बात कर रहे हैं, तो नो एप्लीकेशन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड ऑल। तो सोल प्रोपराइटर का इक्विटी 6 लाख का है, मतलब कैपिटल हो गया हो, लायबिलिटी 4 लाख का है, एसेट 10 लाख का है। ड्यूरिंग द करेंट ईयर मिसेज हे एज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। करना क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट of the aforesaid transaction on the closing balance sheet in the form of asset minus liability equal to equity after each transaction. हर ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट लाना है किस पे? इक्वेशन पे। कौन सा इक्वेशन पे लाना है? एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। ये अगर आपको याद है तो 11वीं में करता था, मॉडर्न अप्रोच में करता था। पैसा उठा के एक क्वेश्चन डाल दिया ये वाला, सुना आपने? हाँ, कर दो, नोटबुक में कर दो, दिमाग लगा के करो। नोटबुक में बना दो, ये सब अतरंगी क्वेश्चंस है, कभी भी आ जाता है, और ये ऐसा सीधा 7-8 मार्क का रहता है ये। क्वेश्चन नंबर 4 in the books of Mrs. A, effect of each transaction on the balance sheet, effect of each transaction on the balance sheet। और उनका बैलेंस शीट क्या फॉर्मेट में मालूम है ना? एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। तो ट्रांजैक्शंस, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू इक्विटी। स्टार्ट करें? चलो, ओपनिंग बैलेंस से शुरू करेंगे हम। तो ओपनिंग बैलेंस एसेट का ओपनिंग बैलेंस इज 10 lakhs माइनस लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस इज 4 lakhs इज इक्वल टू इक्विटी का बैलेंस इज 6 lakhs। चलो, ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या लिखा है? रिसीव 20% डिविडेंड ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each held as investment। मतलब रिसीव डिविडेंड, transaction is received dividend. How much dividend you will get? 10,000 into ₹10 into 20% डिविडेंड है। 10,000 इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपये का, एंड 20% डिविडेंड है।
बोलिए एनीबडी। कहाँ इफेक्ट कैसा आएगा? अरे आपको टर्न मिल गया। एक जन चलो यहाँ से शुरू करते हैं। वेयर वी स्टॉप डियर, यहाँ से शुरू कीजिए। फर्स्ट बेंच। हाँ बोलिए। 1,20,000 इज 20,000 एसेट में ऐड होगा। क्यों एसेट में ऐड होगा? कैश एंड मोर ओवर इट इज एन। ये चैप्टर के साथ क्या कनेक्शन है मालूम है? ऐसी आपको परेशान करना है 11वीं से, इसलिए। व्हाट इज द कनेक्शन विद दिस चैप्टर? यस, इनकम। व्हाट शुड इनकम डू? इंक्रीज, एनहांसमेंट ऑफ एसेट्स। इनकम का इफेक्ट इज इनफ्लो और एनहांसमेंट ऑफ एसेट। Enhancement of asset is asset will increase relating to increase in equity other than contribution from the equity holders. तो एसेट का एनहांसमेंट होगा और इक्विटी का एनहांसमेंट होगा। कनेक्ट करो आप। ऐसे ही कुछ तो एक आपको लग रहा है कि कुछ तो एक 11वीं बीच में आ गया, फिर 12वीं बीच में आ गया, ये चैप्टर के साथ कोई संबंध नहीं है, टाइम पास चल रहा है। आप कनेक्ट नहीं कर रहे ना, तो इंटर में ये करने का जरूरत ही नहीं है, मैं छोड़ देता था। इंटर में कर रहे हैं तो आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अलग होना चाहिए उस पर। अगर हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में शिफ्ट नहीं आ रहा है तो फिर फायदा क्या है? फिर 11वीं वाला भी सेम करता है, आप भी सेम करते हैं, तो 11वीं में रहता था हम। To check its enhancement of assets and increase in equity other than contribution, ऐसे ही पढ़ा था ना हमने। देन दूसरा, amount of 70,000 is paid to creditors for settlement of 90,000. So settlement of creditors at a discount. Settlement of creditors at a discount. चलो एक्सप्लेन करते करते जवाब देना है आपको। सब चैप्टर के साथ कनेक्ट करते करते बोलना है। प्लस माइनस का एंजॉयमेंट मत लो, 11वीं जैसा जवाब मत दो। हाँ चलो, ये बोल रहा है सर मैं एक्सप्लेन करता हूं एक चीज। हाँ बोलो। एसेट में से 70,000 माइनस होगा। हाँ हाँ, तो चैप्टर के साथ कनेक्ट करो। हाँ, कनेक्शन, चैप्टर के साथ कनेक्शन चाहिए। सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी will lead to outflow of economic resources. तो लायबिलिटी का सेटलमेंट कर रहा है, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस हो रहा है। और दूसरा जवाब, एनी वन ऑफ यू, वन ऑफ यू, वन ऑफ यू। हाँ वो बोल रहा है, मैं बोलेगा। हाँ, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी 90,000, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी कर रहे हैं 90,000। और ये बोल रहा है इक्विटी बढ़ जाएगा। कितने से इक्विटी बढ़ेगा? क्यों इक्विटी बढ़ेगा? 20,000 मालूम है? देयर इज अ गेन, देयर इज अ गेन, and there is a gain, so gain has to lead to decrease in liability, increase in the benefit to the equity shareholder. Is a liability decreasing? कितना? 90,000 से डिक्रीज हो रहा है 70 के अगेंस्ट, तो 20,000 का फायदा हो गया ना। 90,000 का सेटलमेंट कर दिया 70 में, तो 20,000 का फायदा हो गया। जरा मैच्योर लेवल से पढ़ के देखो।
तो 9,50,000, 3,10,000, 6,40,000। ऐसा रीजन के साथ करो, हाँ, नहीं तो ही इसका मतलब है। सैलरी इज पेंडिंग 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। बोलिए, एनी वन ऑफ यू? एनी वन ऑफ यू? अभी जिसको टर्न नहीं मिला भाई, आराम कर रहे हैं आप लोग, जवाब दीजिए। आपको तो टर्न मिल गया अभी। हाँ, ही सेइंग सर, आई विल टेल। ये बोलना एसेट सेम रहेगा, लायबिलिटी 20,000 बढ़ जाएगा। ये बोल रहा इक्विटी में 20,000 कम हो जाएगा। क्यों इक्विटी 20,000 से कम होगा? इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी है, इसलिए। एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस विल लीड टू आउटफ्लो और डिक्रीज इन एसेट्स लीडिंग टू डिक्रीमेंट इन द इक्विटी वैल्यू। चेक करो, आउटफ्लो हो सकता है, या तो एसेट कम होएगा या लायबिलिटी बढ़ेगा और उसका फिर इक्विटी में डिक्रीज होगा। क्यों लायबिलिटी क्रिएट हो गया मालूम है ना, आउटस्टैंडिंग है। तो 9,50,000 माइनस 3,30,000 इज इक्वल टू 6,20,000। ड्रॉइंग्स 20,000। बोलिए। आपको तो टर्न मिल गया मोहन। और एनीवन? आपको भी टर्न मिल गया। और कोई? ओ, आराम कर रहे हैं, बोलो लास्ट वन, चैप्टर खत्म। अच्छा, अभी डिसाइड कर रहे हैं कौन बोलेगा ऐसा। एकदम फुर्सत में, एकदम ऐसा उसको लग रहा है चैप्टर डिले करते हैं अपन, इसको इसको आंसर 6 बजे तक नहीं देंगे हम। तो उल्टा सुल्टा स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उससे अच्छा जल्दी के खत्म करो ना। हाँ बोलो। नथिंग। इतना क्या रिसर्च कर रहा है इजी इजी चीज में यार। चलो, नोबडी इज आंसरिंग, चलो ये बोल रहा, मैं बोलेगा। एसेट में डिक्रीज 20,000, it's an expense. He's saying it's an expense leading to depletion of asset. Is it an expense? No. It is outflow of equity. It's an outflow of equity. जैसा बोलते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी लीड्स टू व्हाट? डिक्रीज इन इक्विटी एंड आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी है, इक्विटी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं आप। ये क्या, ये प्रोपराइटर है ना, तो प्रोपराइटर कैसा लेके जाएगा? ड्रॉइंग्स। कॉर्पोरेट रहेगा तो कैसा करेगा? डिविडेंड। कॉर्पोरेटर क्या ना होगा, पर्सन होल्डिंग शेयर्स कैनॉट से मैं कंपनी का बैंक अकाउंट से ड्रॉइंग निकाल रहा हूं। यू कैनॉट से मेरे पास रिलायंस का 10 शेयर पड़ा है, मुझे भी ड्रॉइंग्स करने दो।
That's why corporates are not allowed drawings. ये प्रोप्राइटर है, अपना पैसा है, कैसे भी करो भाई, कम रिस्ट्रिक्शन है. So it is distribution of equity. So that will come to 9 lakh 30 minus 3 lakh 30, 6 lakhs. I hope you are bringing different perspective to seeing that. नहीं तो डेफिनेशन सब मैं देता ही नहीं था ना, टाइम वेस्ट है मेरा फिर हूं. आर वी गेटिंग? हाँ, तो कोई भी रीजन पूछेगा तो उसका डेफिनेशन होना चाहिए, प्रोविजन का डेफिनेशन होना चाहिए आपके पास. कोई बोलेगा क्यों एक्सपेंस है, तो डोंट से एक्सपेंस है, खर्चा है, मालूम नहीं है क्या. वो खर्चा है मालूम नहीं, वो 11वीं वाला बोलेगा, 12वीं वाला बोलेगा, तुम भी बोलेगा हाँ एक्सपेंस मतलब खर्चा है, तो डजंट मेक सेंस. Clear? So that finishes that chapter. That ends that section. Clear till here? Fine. So I think all done. Yeah, MCQs. I think 4-5 MCQ है, you will be able to do it 2 minutes time. 2 minute का time है. Time starts now. We'll ask one by one. Done? चलो स्टार्ट करें. चलो फाइन, डन. स्टार्ट करते हैं यहाँ से, फर्स्ट बेंच से. हाँ, शी सेइंग द फर्स्ट वन. बराबर है. चलो पीछे. रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी. कौन सा वर्ड है इधर? क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. आर वी गेटिंग? क्वालिटेटिव आर नॉन न्यूमेरिकल. क्वालिटेटिव आर नॉन न्यूमेरिकल. नेक्स्ट पीछे. सी ह्यूमन रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट. बराबर है. There is nothing called as a see human responsibility report. Huh? Social responsibility is there, yes. That depending on what type of organization you have, you do say what you have contributed towards economy and people around. Are you getting my point? अब जाओगे आगे तो there is something called as integrated reporting करके है. Integrated reporting करके आप पढ़ोगे तो वहां पर you will find in this is of course for a very big corporates.
तो उनका इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग देखोगे तो उसमें वो लोग लिखते हैं कि हमारे कारण नेचर में क्या परिवर्तन हुआ, नेचर को क्या फायदा हुआ हमारे कारण। तो नेचर को कैसा फायदा हुआ रहेगा, दे विल से वी हैव प्लांटेड ट्रीज, वी हैव इंक्रीज द वाटर लेवल रिजर्व्स, वी हमने क्या बोले वेस्टेज ट्रीटमेंट किया है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कंजर्वेशन किया हमने, so that is related to nature. Then they say what type of contribution we have made to the employees, कि हमने कितना लोगों का स्किल अपग्रेडेशन किया है, उनका नॉलेज लेवल बढ़ाया हमने, या हमने आजू बाजू जो जहां हमारा फैक्ट्री है उस आसपास में हमने क्या क्या परिवर्तन किए हैं, देल से हमने स्कूल बनाया या वेलफेयर सेंटर बनाया या मेडिकल सेंटर बनाया या स्कूल बनाया, all those covered under here, that comes under the heading of integrated reporting करके separate reports निकालते हैं लोग। चलो next, both A and B, that is statute or account, statute is nothing but your law or accounting standard and appropriate presentation। पीछे कंट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम अर्न के कारण भी इक्विटी में फर्क पड़ रहा है एंड एक्सपेंस के कारण भी, वो डेफिनेशन पढ़ोगे तो ही मालूम पड़ेगा, नहीं तो अपेरेंट आप बोले एक्सपेंस से किधर फर्क पड़ता है इक्विटी में, हम तो बोले अब प्रॉफिट चेंज हो रहा है बट अल्टीमेट रिजर्व्स एंड सरप्लस में जा रहा है ना। तो वेरी ब्रॉड बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, क्लियर ऑन इट, हो गया चैप्टर डन। चलो दैट फिनिशेस योर चैप्टर नंबर 2, तो खत्म हो गया चैप्टर 2। चलो फाइन, तो अगला तैयारी करते हैं हम।